Hello, everyone. Good afternoon, good evening, good morning. My name is Rishabh. Thanks again for joining us in our next episode that is Redesign Your Life again. Episode number 10, Skeptical About This Business. Firstly, I'll start with the recap of a previous topic, that is the comparison of the MLM, basically business model with our digital business model. सो हमने लास्ट टाइम हमने उसमें एक्सप्लेन किया था कि हाउ हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो एमएलएम टिपिकल बेसिकली एमएलएम मॉडल से कैसे डिफरेंशिएट करता है. सो आई क्विकली जंप ऑन फ्यू बुलेट पॉइंट्स ऑन दैट कि जैसे कि हम कोई इन्वेंट्री कोई कोई टारगेट नहीं है हमारा, हम कोई इन्वेंट्री नहीं रखते हैं. वी आर नॉट आंसरेबल टू एनी वन. We don't have any, let's suppose, any bosses or something that we have to uh, give the reports and everything on a daily basis or on a weekly basis. और the other thing is कि इस business में कोई annual fees नहीं है. Like other opportunities में you have see there are membership fees or the renewal fees that you have to give every year on year to be in this business. And the good thing about this business is कि इसमें कोई cold calling नहीं है, कोई bugging नहीं है. You don't have to go and reach any warm market. आपको physically कहीं present नहीं होना पड़ेगा. आपको physically कहीं जा जाके about products और services के बारे में कोई explain नहीं करना है. In most of the businesses, and I have seen the actual the member of that group actually comes to us and as a customer, and they explain about the products and services. This is something not we are doing over here. We are just focusing on, as we explained in couple of previous episodes, हम अपनी सिर्फ marketing activities और campaigns के ऊपर सिर्फ focus करते हैं. That is our daily routine, nothing else. We don't focus on product or any kind of a recruitment thing. Okay, so कोई टारगेट नहीं है एज वी सेड. सो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है इस बिजनेस में. टीम, yes, we do have team is just here to support you or guide you in your digital career, in your business. You can reach out to your coach, you can reach out to your mentor, or we have a whole community. You can reach out to anyone is everybody is there to help you. So these are the couple of bullet things. If you want to go deeply into that, please watch our episode number 9. You will get to know much more about how we differentiated the MLM business models versus the our digital online business. Or if you have doubts, you can reach any of four of us directly. We are happy to help or answerable to any of your questions which you have. So now we'll start with our today's topic, that is skeptical about this business. So skeptical एक word ही ऐसा है कि I think कि skeptical, मेरे हिसाब से skeptical is basically in is a healthy thing, is a healthy part in taking any decision making process. We should be skeptical, I think. कि अगर हम कुछ भी कहीं नया स्टार्ट करते हैं, हमारे मन में फियर है, कुछ भी है, तो इट मीन्स कि हम उस बिजनेस को या उस चीज को करना चाहते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट है. अदरवाइज somebody who is not skeptical, he or she will not probably not being interested in doing that or something in working in that. Okay, so मेरे हिसाब से skepticism होना बहुत जरूरी है. So I'll explain about today is that um, how a male person or how a man is being skeptical about this online business world. So online जब एक वर्ड आ जाता है ना, तो ऑनलाइन तो हमें हमारे मन में एक स्कैम या एक फॉल्स प्रोमिसेस का डर बैठ जाता है कि ये कहीं स्कैम ना हो, कहीं कुछ और चीज ना हो कि जिसमें हम कहीं फंस जाएं पैसे लगा के. So many, I think बहुत सारे लोग, many men might feel uncertain about diving into this online business. So I think it's understandable that we have seen a couple of stories online, scams or false promises के regarding. But here हमारा goal है, हम चारों का या हमारी टीम का, कि to provide you full transparency so that you can see how our business actually operates. Like I said earlier or in our previous episodes, कि कोई रिक्रूटिंग नहीं है, कोई हिडन फीस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है बाय और सेल प्रोडक्ट्स का, कोई रिक्रूटमेंट नहीं करना है. बस द सक्सेस यू अचीव हियर इज जस्ट बेस्ड ऑन योर डेली एफर्ट्स, जो आप टाइमली अपने बिजनेस को दोगे, and which is being supported by a system designed to help you succeed in your online business. And the training and the mentorship
which you will get from your coaches and mentors in this business. You don't need to be a tech expert or something, because anybody in this business, they are not a tech savvy or something. You don't have to leave your current job, frankly. हम सब भी इस बिजनेस में साथ साथ अपनी फुल टाइम जॉब्स कर रहे हैं. By the time we are working on this online digital business, to start something of their own, to make something, build something of our own in 5 years or 10 years down the line. And I think this business adapts to your schedule and your needs too. Now I will explain about a couple of points regarding the uncertainty or the skepticism about the men's. Like perception आ जाती है कि risk और uncertain तो नहीं है ये, कि लाइक मैनी अदर ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे कि रिस्की होते हैं, स्पेशली जिसको हमने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, कोई किसी मॉडल को एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, तो उसमें थोड़ा सा डर या फियर ऑफ स्कैम, गेटिंग इन्वॉल्व इन समथिंग दैट्स नॉट कैन नॉट बी लेजिटिमेट बिजनेस, उसमें थोड़ा सा डर लगा रहता है, राइट. और फियर ऑफ द अननोन, एक डर पैदा रहता है कि कोई नया, किसी नए नए बंदे के साथ या नए किसी के साथ बात कर रहे हैं, हम जानते नहीं है वो कौन है, वो क्या करता है, कहीं हमें कहीं गलत चीज़ों में फंसा ना दे, वो एक डर हमेशा बना रहता है. और मिसकंसेप्शंस बहुत सारी रहती हैं इन मेंस माइंड, आई थिंक, अबाउट डिजिटल बिजनेस बीइंग स्कैम और एमएलएम. फॉर एग्जांपल, लाइक आई एम बीइंग अ immigrant to this country in Canada since last a year ago, और मैंने भी यहाँ आके बहुत सारे स्कैम्स और बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिसेस के रिगार्डिंग मैंने सुना. और आई वाज आल्सो वेरी स्केप्टिकल व्हेन आई जॉइंड दिस बिजनेस, बट देन आई द थिंग कम्स टू माय माइंड इज कि अगर मैं स्केप्टिकली रहूंगा या मैं अगर ये सोचता ही रहूंगा तो आई कांट स्टार्ट एनीथिंग, राइट. सो आई थिंक वी शुड जंप इनटू दिस बिजनेस. एंड और इसमें द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज, एज वी एक्सप्लेन इन कपल ऑफ प्रीवियस एपिसोड्स, दैट कि आपको 30 डेज का ट्रायल पीरियड मिलता है. सो जिसमें कि आप बेसिकली आप ज्वाइन करके आप अपने कोचेज, अपने मेंटर्स के साथ आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हो कि व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट. एंड if as a couple you are joining, I would say ki watch the webinars, watch the replay videos all together, so that whatever the questions you have, you can write it down, and you can ask as many as times to your coaches and your mentors that they can address that. And you can actually relate your why with the questions which comes into your mind on a daily basis about this business. ये business क्या है, regarding the financial investment, financial planning के regarding आप कैसे इसको address कर सकते हैं. And I would suggest कि आप दोनों एक साथ meeting में आएं, ask as many as questions if you have, and definitely go for a trial period. That will help you in understanding more about this business, because for example, अगर आप join कर जाओगे, you can't explain in a better way to your spouse or that about this business, because in a day or in a 2 days meeting, you are not well aware about this business. So I think your coach and your mentor will be the right person to address about business in a better way. और I think ऋषभ, मैं यहाँ पे एक चीज ये और बोलना चाहूंगी कि जब ये जो बिजनेस है ये दोनों के लिए नया होता है, ठीक है. इफ यू डोंट हैव एनी एक्सपोजर अर्लियर अबाउट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन इट्स वेरी नेसेसरी फॉर बोथ द पर्सन टू वॉच and to research and to study about this opportunity together, so that आपके जो doubts होते हैं वो एक साथ बैठ के discussion करने से, because both of you would be on the same page. जब आप एक साथ चीजों को explore करते हो तो आप दोनों एक पेज पर होते हो. दूसरा एक चीज मैंने ये भी नोटिस करी कि जो एक मेल साइकोलॉजी की बात करी जाए तो दे ऑलवेज बिलीव इन फैक्ट्स, फिगर्स एंड लॉजिक्स. दे नीड एवरीथिंग टू बी सपोर्टेड बाय लॉजिक, ठीक है. तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जब आप एक चीज को समझते हो, एंड व्हेन यू पास ऑन ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू योर हस्बैंड, टू योर स्पाउस, तो कुछ चीजें मिसिंग होती है. एंड अनलेस एंड अनटिल दिस दे आर सेटिस्फाइड विद द प्रॉपर लॉजिक एंड प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स, दे वोंट अग्री. और वो भी हमारे लिए एक होता है. अगर हम अपनी बात करें तो वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर हमें एक सेफ साइड चलने के लिए ही बोलते हैं. एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज आर्ग्यू विथ अस. सो वो आर्ग्यूमेंट में उलझने से बजाय वी ऑलवेज रिकमेंड यू कि जब भी आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हो तो आप साथ मिलकर एक्सप्लोर करें, ताकि आप एक डिसीजन पे आए, आप एक पेज पे आए. और जब आप दोनों के बीच में भी ये डिस्कशन होगा ना, तो दैट वुड बी अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, because both of you have some base of informations, and on based of those informations you can argue with each other and you can come to a conclusion very soon.
डेफिनेटली यू नो आई वांट टू ऐड माय एक्सपीरियंस इन दिस, बिकॉज जब मैंने ये बिजनेस देखा था दैट टाइम आई वाज स्केप्टिकल, बिकॉज मुझे लगता था कि जैसे कि बाहर की कंट्रीज में स्कैम नहीं होता. सो सीरियसली मैं वाज लाइक, मैंने बाहर की जॉब्स करी नहीं थी, तो मुझे लाइक इसलिए इंडिया में होता है, ठीक है होता होगा, पर बाहर की कंट्रीज में नहीं होता. बट मेरे हस्बैंड यहाँ कनाडा में बहुत टाइम से रह रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से. सो ही नो. एंड जहां तक हमें लगता है जो मेंस होते हैं ना वो मोर प्रैक्टिकल भी होते हैं, जैसे कृति जी ने बताया कि लॉजिक, फैक्ट्स, फिगर, एवरीथिंग वो देखते हैं. सो मेरे हस्बैंड को जब मैंने ये बिजनेस बताया तो ही टोल्ड मी कि ये स्कैम होगा. मैंने कहा चलो स्कैम कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता. तो ही वॉज स्केप्टिकल, बट अच्छी बात ये थी कि वो स्केप्टिकल थे. जो उनके क्वेश्चंस थे उन्होंने वो क्लियर करे, उन्होंने वो सारे क्वेश्चंस अपने लाइक मेरी कोच जो या मेरी मेंटोर उससे पूछे, सारे अपने डाउट्स क्लियर करे. एंड देन ही टोल्ड मी ओके यू नो नाउ आई आस्क व्हाटएवर द क्वेश्चंस आई हैव एंड यू कैन गो अहेड. एंड दैट हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया. एंड आई एम हियर लाइक 4 years हो गए हैं एंड वी आर डूइंग गुड. Right. और एक चीज ये मैं भी बोलना चाहूंगी कि सोशल मीडिया को लेकर भी लोग बड़े स्केप्टिकल होते हैं कि क्योंकि सबको सोशल मीडिया का एक्सपोजर नहीं होता, सब अलग अलग फील्ड से आते हैं. जैसे हम बोलते हैं हमेशा कि हमारे बिजनेस में वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, डिफरेंट प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स. तो जरूरी नहीं है कि सबको सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर होता है, और उसी वजह से सबका जो परसेप्शन होता है टुवर्ड्स सोशल मीडिया वो भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस विद सोशल मीडिया. तो जैसे सोशल मीडिया की बात की जाए तो इट्स अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म. तो ये ओपन प्लेटफॉर्म होने की वजह से एक बड़ा सा एक फियर हमेशा मन में रहता है कि ओपन प्लेटफॉर्म पे कैसे काम किया जाएगा, कैसे प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, बहुत सारी चीजें होती है एंड दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, वो भी हम जानते हैं. बट जब आप बिजनेस को एक्सप्लोर करोगे एंड व्हेन यू टेक द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, जहाँ पे हम आपको बोल रहे हैं कि यू टेक द ट्रायल पीरियड ऑफ 30 days, तो वो जो 30 days होते हैं उसमें आपको यही सारी चीजें ड्यू डिलिजेंस करने का मौका मिलता है. यू कैन have a chance to have a one-on-one discussion with mentor, with coach, with maybe sometimes other people in the community as well. और तब आपको पता चल रहा है कि ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो जब आप एज अ स्ट्रेंजर और एज अ लेमैन यूज करते हो तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, और जब आप उसको अपने कमर्शियल यूज की या फिर इसको एक प्रोफेशन के लिए यूज करते हो, देन दे हैव देयर ओन प्राइवेसी पॉलिसी, सिक्योरिटी. वो भी हमारी सिक्योरिटी के लिए उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, बट वो तभी पता चलेगा वंस यू एक्सप्लोर. सो वंस यू स्केप्टिसिज्म होना इज वेरी नेचुरल, बट हाउ टू ओवरकम दैट स्केप्टिसिज्म एंड हाउ टू क्लियर योर डाउट्स, इट इज ओके whatever decision you take. बट आप स्केप्टिसिज्म, आपके मन में जो डाउट्स है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है. एंड दैट कैन बी हैपन वंस यू आस्क क्वेश्चंस, वंस यू रीच आउट टू अस, वंस यू स्टडी एंड रिसर्च द मॉडल. यस, या, और राइटली सेड कृति, क्योंकि बिजनेस मॉडल एक्सप्लोर करने के बाद व्हेन यू डू योर ड्यू डिलिजेंस, तो नेक्स्ट स्टेप आता है, यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. अरे, बिकॉज विच इज अ वेरी नेचुरल फीलिंग, राइट? बिकॉज you're doing something for the first time, या कभी आपने मतलब आपको नॉलेज नहीं उस चीज के बारे में, right? And I think it's very I would say a very natural feeling, और बहुत ही जायज है कि ये फीलिंग आना, और गलत भी नहीं है, क्योंकि और ये फीलिंग आई थिंक लाइफ में बहुत बारी आती है whenever you're going to try something new for the first time. और ये चीज मेरे साथ भी हुई when I explored the business, और I was convinced with the business model, और मेरे को features और benefits बहुत अच्छे लगे. But then I doubted myself कि भाई I'm never on the social media platforms. I'm not open to that. मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी? मगर एक चीज थी कि the world is new now. Everything is going digital these days. Everyone is doing marketing on social media platforms, right? So I think it all comes with practice. मतलब आपका जो doubt है, once you put things into practice, जो वो doubt है वो कहीं ना कहीं you start gaining the confidence level in your journey. और वो I think doubt initially इसलिए भी आता है क्योंकि it's a altogether a different journey. Like now you are becoming a business owner. It's not a salary based job, right? कि भाई आपको salary मिल रही है, right? You have to be on yourself, or somehow you are convinced with the income structure and everything, but दिमाग में आता है
कैसे होगा, कैसे करेंगे, राइट? और ट्रस्ट मी, और एवरीवन नोज हमारी कम्युनिटी में कितने सारे ऐसे लोग हैं, मतलब दोज आर नॉट इवन एक्सपीरियंस, जिन्होंने कभी जॉब भी नहीं किया, एंड दे डूइंग वंडर्स इन दिस कम्युनिटी. और जबकि मैं एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आई वाज डाउटिंग माई सेल्फ कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, राइट? तो आई थिंक इट्स ऑल कम्स विद प्रैक्टिस. और उसके बाद आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक इसमें है कि टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल एंड डूइंग योर ड्यू डिलिजेंस. ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया एंड देन यू स्टार्ट डाउटिंग द बिजनेस मॉडल आफ्टरवर्ड्स. तो फिर तो अपने ऊपर तो डाउट होगा ही होगा. यू वोंट बी एबल टू गो नेक्स्ट विद दैट, राइट? तो बहुत जरूरी है सबसे पहले एक बिजनेस मॉडल को समझना, डूइंग योर रिसर्च प्रॉपर्ली, डूइंग द ड्यू डिलिजेंस, एंड देन गोइंग फर्दर दैट ओके, this is something which is meant for me. I am convinced with the features and benefits. Now I have to move to the next steps. और एज ए सेड, ऋषभ ने भी बोला जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं या मेंटरशिप है, तो मेंटरशिप और ट्रेनिंग की जहां बात आती है, आर कोचेस एंड आर मेंटर्स आर एक्टिंग लाइक असिस्टेंट टू अस, राइट? हमारे वो असिस्टेंट है, दे आर helping us to set up everything, but you are the one who has to put your efforts into this business every day कि अपनी queries लेकर आओ. तभी वो self doubt कहीं ना कहीं वो एक confidence level में बदलेगा once you put those things into practice, because ये चीज आपको खुद करनी है. It's not something they have to run your whole show, because you are independent business owners. तो वो doubt तभी आपको लगेगा कि okay, this is something now I'm doing slowly, which I did for myself when I started this business. I didn't have any knowledge about the social media platform, but slowly every day I was taking like small steps to achieve like small goals in order to reach my big targets. So that is a really important thing कि आप कैसे चीज कर रहे हो, but nothing like कि आपके mentors और coaches सिर्फ they are just there to help you out. If you have any questions and queries, definitely you can reach out to them. But you are the one who have to run the whole show and to gain that confidence level in the business. So I think that's the most important thing, how you can come over that self-doubt in this business. या रंजना, जैसे आपकी बात सुनकर ना मुझे वही याद आ गया, जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड स्केप्टिकल थे. जब हमने ट्रायल पीरियड लिया, मेरे हस्बैंड को सिस्टम पे ट्रस्ट आ गया एंड ही स्टार्ट डाउटिंग ऑन मी कि आई डोंट थिंक सो कि तू ये कर पाएगी, बिकॉज अगेन यू डोंट हैव एनी सोशल मीडिया नॉलेज. सो हियर वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग. जैसे कृति ने भी मेंशन किया, रंजना ने भी मेंशन किया कि हम लोग आपको हर एक जो फेस प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, वी विल प्रोवाइड ऑल द ट्रेनिंग फॉर दैट. बट अगेन वी आर द पर्सन हु हैव टू लाइक पुट आवर एफर्ट्स इनटू द बिजनेस, तभी ये बिजनेस रन होगा. क्योंकि अब जैसे देखो ना, आप जॉब में भी जाते हो, राइट? वहां पे एक पीस ऑफ माइंड होता है कि ओके आई एम गेटिंग अ सैलरी, ठीक है, बट आप एक नया रोल ट्राई कर रहे हो, वहां पे भी आपको इनिशियली वो आप यू विल बी गोइंग थ्रू द इंडक्शन, राइट? आपको एक ट्रेनिंग्स मटेरियल्स दिए जाएंगे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, राइट? ऑफ कोर्स योर मैनेजर्स एंड योर colleagues are there to help you out if you stuck with something, but you have to put the efforts on your own. कि मेरे को ये चीज कैसे करनी है, कैसे एक्सप्लोर करना है, कौन से how I have to explore the right resources, right? मेरे को how thoroughly I have to go through the training process, right? But it's not something your mentors and coaches are not going to run your whole show. कि एक चीज आपको सिखा रहे हैं और कर रहे हैं. It's all depends upon your own efforts. तभी वो डाउट आप अपने आप को आप एक कॉन्फिडेंस लेवल महसूस करोगे धीरे धीरे अपनी जर्नी में, राइट? एंड देन यू विल से ओके, नाउ आई हैव मूव्ड फ्रॉम माय डिस्कम्फर्ट जोन टू माय कंफर्ट जोन. नाउ आई एम गुड टू गो, राइट? नाउ आई कैन ऐड ऑन मोर स्किल्स इन माय जर्नी. सो दैट्स आई थिंक विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू फॉलो, अगर इफ यू आर कन्विंस्ड विद द बिजनेस मॉडल. इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड विद द बिजनेस मॉडल और आप बिजनेस ओनर बन भी गए हो, तो आपको अपने ऊपर भी डाउट रहेगा और बिजनेस मॉडल पे भी रहेगा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल. When that thing is fixed for you in your life, then okay, वो doubt तो चला ही जाएगा. Okay, you will definitely going to overcome that challenge in your business for sure. Actually, Ranjana, in this case, I would believe कि जब भी हम लाइफ में कुछ ऐसी नई चीजें करते हैं जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, करियर चेंज की बात आती है, हम नई जॉब भी ट्राई करते हैं, नया बिजनेस, प्रोफेशन, वेरेवर भी हम कभी कोई अपना कंट्री चेंज कर लेते, कोई जगह भी चेंज करते, तो वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स ऑन टेस्ट.
जब तक आप Yeah. अपने आप को टेस्ट मोड पे नहीं डालोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि Yeah. आप में क्या कैपेबिलिटीज आप क्या अचीव कर सकते हो और आप में क्या लैकिंग है, ठीक है. एंड Absolutely. then you can start working on your those missing piece of skills, और I would say कि जो skill sets नहीं है आपके, you can start working on that. Because business model understand the business model, it is very plain and simple. वो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा. There is no more rocket science. But जो real काम जो आपको करना है, that you have to work on yourself. जब तक आप अपने में विश्वास नहीं रहोगे तब तक तो बिजनेस मॉडल, देखो बिजनेस मॉडल सबके लिए वर्क करता है, और अगर आपके लिए नहीं वर्क कर रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं आप में वो ट्रस्ट नहीं है, आपको अपने पर ट्रस्ट नहीं है, या यू डिडंट हैव पुट इनफ एफर्ट्स टू वर्क ऑन योर स्किल्स. आपने वो स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया है, या फिर आपने अपने आप को इतना टेस्ट मोड पे नहीं रख कर आए. जब आप ये सब स्किल्स पे काम करोगे देन ऑटोमेटिकली वो जो स्केप्टिसिज्म और जो फियर, और जो ऋषभ ने सबसे पहले बोला, एंड आई वुड हाईली अग्री विद दैट, कि जो फियर ऑफ अननोन होता है उसी की वजह से ये सारे सेल्फ डाउट, स्केप्टिसिज्म, क्योंकि फिर क्या होता है ना, हम दूसरी चीजों पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. तो इट वुड बिकम अ ब्लेम गेम रादर देन बीइंग स्केप्टिकल ऑन आवरसेल्व्स, रादर देन डाउटिंग आवरसेल्व्स, वी स्टार्ट पुटिंग blame The on blame on others. Yeah, absolutely. Yes, yes. So तो मैं sorry कृति जी to interrupt. हाँ जी, कंटिन्यू करिए. हाँ, तो यहाँ पे कृति जी ने और रंजना जी ने जैसे बोला कि टाइम कमिटमेंट कंसर्न्स रिगार्डिंग, सो किसी भी बिजनेस को मेरे हिसाब से एक सक्सेसफुल होने के लिए एटलीस्ट 3 to 5 years का टाइम लगता है, राइट. इवन इफ यू आर इन अ फ्रेंचाइज बिजनेस और समथिंग, राइट, सो आपकी जो टीम होती है जिससे आप फ्रेंचाइजी लेते हो, सारा कुछ वो आपको एक सेटअप करके दे के चले जाते हैं, right? Like in this business, if I compare, like your coaches and mentors will help you in training and everything, and आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट दिस बिजनेस और सारी ट्रेनिंग समझा देंगे, आपका अकाउंट वगैरह सेटअप कर देंगे. पोस्ट दैट वी हैव टू वर्क ऑन योर ओन, राइट. टाइम कमिटमेंट हमें देनी ही पड़ेगी. ऐसा नहीं कि हम सपोज इन फ्रेंचाइज बिजनेस में आप एटलीस्ट आपको डेली जाना पड़ता है, राइट. इस बिजनेस में एटलीस्ट कोई फुल टाइम भी जॉब कर रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम अ फुल टाइम वर्कर, राइट, तो मुझे साथ में एटलीस्ट एवरी डे आई थिंक आई हैव टू गिव एटलीस्ट 2 to 3 hours in a day on my business so that it will be successful in 5 years or 10 years down the line. Your coaches and your mentors are just there to help you or guide you if you have any problem. मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, my coach is there in the meeting, I'll call her and I'll ask her whatever the doubts I have, right? So I think time commitment is बहुत जरूरी है. It's not like कि वो हमारा बिजनेस ऑटोमेटेड है, जैसे कि हमने बोला कि वो चलता रहेगा. No, you have to give the time, you have to do your daily task and everything. And about skepticism, one thing I want to add with the daily life example which my mother used to give me, कि कोई भी अगर हम खाना, हम कोई सपोज कोई डिश अगर हम नहीं ट्राई करते हैं, हमें नहीं पसंद है, राइट, तो हम, मेरी माँ मुझे बोलती थी कि यार तू खा के तो देख, तब तेरे को पता चलेगा कि ये चीज अच्छी है या नहीं है, राइट. बिजनेस, सेम अबाउट द बिजनेस की ये ट्रायल पीरियड आपको मिला है, एटलीस्ट 30 days रिफंडेबल ट्रायल पीरियड है, राइट. आप एटलीस्ट आइए इस बिजनेस में, टॉक टू योर कोचेस एंड मेंटर्स हूसोएवर इज, उनसे समझिए, आपके वाइज के साथ रिलेट कीजिए, देन टेक अ डिसीजन rather than being skeptical and seeing on an ad online and saying अरे नहीं यार ये ऑनलाइन है यार, ये स्कैम ही होगा या कोई false promises they are providing. I would suggest do something. I was very skeptical when I was before jumping into this business की, then I decided कि यार अगर मैं ऐसी सोचता रहूंगा सब स्कैम है तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं ऐसे तो. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो स्केप्टिसिज्म का सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है ना, वो सेल्फ डाउट पे ही होता है. बाकी सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. वो तो आप 2-3 दिन थोड़ा सा इस पे फोकस करोगे, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करोगे. आज तो गूगल पे सब कुछ गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चल ही जाता है कि कितना स्कैम है, कितना रियल है, और आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स नजर आ जाएंगे बिजनेस के बारे में. बट द रियल थिंग दैट यू नीड टू वर्क इज टू वर्क ऑन योर सेल्फ डाउट्स. आपके खुद के फियर्स पे काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ कि आप कितने कंफर्टेबल हो इस बिजनेस को लेकर, क्या आपके पास वो सारे स्किल्स हैं. नहीं है तो आर यू रेडी, आर यू विलिंग टू वर्क ऑन योर स्किल्स, आर यू विलिंग टू ब्रीच दैट गैप की जो मिसिंग चीज है जो उस बिजनेस के लिए जरूरी है. जब तक आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, यू वोंट बी एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. यू कैन नॉट बी ऑन द कंक्लूजन कि आपको आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना है, और आप वही स्केप्टिसिज्म में ही रहोगे. आपके
सी डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन होता है, एंड यू हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग एनी डिसीजन. Right. Or in fact, Kruti, in fact, when you are in a job, right, when you change like different roles in your organization, वहाँ doubt नहीं आता लोगों को, right? Because of course I'm getting a promotion, मेरा package बहुत अच्छा हो रहा है, See, वो भी it- नया role है, you are वो इसलिए कि getting वहाँ your पे एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट लगता है कि Exactly. दे आर नॉट Yeah. अलोन. ऑफ कोर्स दिस इज अ Yeah. बिजनेस, और आप जॉब मेंटालिटी से या जॉब से जब आप बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हो तो इट्स अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. आई वुड से कि ये एक खुद के लिए बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, क्योंकि आपका जो पूरा पर्सपेक्टिव होता है वो 8 to 4 जॉब करनी है. अगर किसी दिन सिक लीव भी ले ली, मेडिकल लीव भी ले ली, बट आपका पे चालू रहेगा. नोबडी इज बॉदरिंग यू. एक बार आपने लीव ले ली तो. बट यहाँ पे तो जब आप बिजनेस पे खुद पे काम नहीं करोगे तब बिजनेस में आगे कुछ नहीं होने वाला है. ये नहीं बोल रही हूँ, बट यू हैव टू पुट सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एवरी डे कंसिस्टेंटली टू ग्रो योर बिजनेस. अगर आपको कुछ अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हो या फिर कुछ एक अचीव करना चाहते हो बिजनेस में, देन यू हैव टू पुट इन इनफ एफर्ट्स. Yeah, exactly. Yeah, so I So I think think thank you so much for watching us. I think we have covered most of the points. And if anything wants to like add, and probably then we can wrap it up. So thank you so much, guys, for watching us and joining us. And we will see you in next episode next Thursday. Thank you and have a good one. Thank you everyone. Thank you. Bye bye. 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 Bye.